میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم آج اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہر ایک یہ جانتا ہے دنیا کی زندگی بس تھوڑی سی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو انتقال کرنا ہے اور اس ختم ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی اصلی دنیا یعنی آخرت تک جانا ہے۔ اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا جوان یا پھر بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے دروازے سے ضرور گزرنا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، اور قیامت سے پہلے تمام جنوں اور انسان کی روحوں کو اپنے اعمال کے حساب سے اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا کنیکشن رہتا ہے۔ قبر پر آنے والے کو وہ پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب عنہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضرت سلمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم آپس میں ملے، ایک دوسرے سے کہا کہ ہم تینوں میں سے پہلے کوئی انتقال کر گیا تو بتانا، موت کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ مردے کو زندہ بھی ملتے ہیں۔ فرمایا، ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے انتقال ہو کر عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہے، اور ہمارے بہن بھائی بھی ہے، اور ہماری فیملی ہے، اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندے کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، اے لوگو، مجھے جلدی لے کر قبرستان کی طرف لے کر اور بہت جلد مجھے لے کر میرے اصلی ٹھکانے یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والی جو منزل ہے وہ اچھی ہے یا مشکل ہے یا سخت ہے یا آسان۔ کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مرنے والے کو یہ اندازہ اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا انجام ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میری پیاری بہنوں،
गुनहगार बेनमाजी इंसान की मौत होती है तो वह चिल्ला चिल्ला कर ये कहने की कोशिश करता है, ए लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, ए मेरे बच्चों। यानी कि वो फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनाया, और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कोठरी यानी कब्र के अंदर क्यों डालने जा रहे हो। उसे बहुत घबराहट होती है तो वे कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल मेरी बहनों, जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर है, हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार उस पिछली दुनिया में है जहाँ पर वो पहले रहता था। इसी वजह से रिवायत में आता है कि जब कोई इंसान अपनी किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा आने वाले को पहचानता भी है कि यह हमारा फलाना शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वे पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर जो आया है वे हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। जिस तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या फिर उस शख्स की कब्र पर से गुजरता है जिसको वो दुनिया के अंदर जानता था और वो उसको सलाम कहता है तो वे उसका सलाम सुनता भी है और उसको सलाम का जवाब भी देता है, और वो कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है। और अगर कब्र पर उसका प्यारा रिश्तेदार जाता है तो कब्र वाले को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अगर मुर्दा गुनहगार होता है तो और अपने गुनाहों की वजह से सजाए भुगत रहा होता है तो वो कब्र वालों को पहचान कर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि कब्र के अंदर उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाती है और वो अजाब से परेशान हो रहा होता है। इसी वजह से उसका कब्र पर आने वाले की तरफ ध्यान नहीं होता। और जब हम कब्रिस्तान पर जाते और ये कहते अस्सलाम वालेकुम या अहले कुबूर, तो वे कब्र वाले सलाम सुनते भी और सलाम का जवाब भी देते हैं। और बुखारी शरीफ हदीस में जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम की इसाले सवाब कहता है तो और जवाब इसाले सवाब को तो तोहफा बना के उस मुर्दे को पेश किया जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उस वक्त उसको ऐसी खुशी मिलती है कि उससे पहले उसको ऐसी खुशी कभी नहीं मिलती। बहरहाल मेरी बहनों, जो गुनहगार बंदा होता है तो ये दुनिया बहुत याद आती है और ये कहता है कि हम बहुत ऐश की ज़िंदगी में थे, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए जन्नत थी। उसको कब्र के अंदर अजाब हो रहा होता है, इसी वजह से वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी को याद करता है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी में उसे सुख था। दुनिया की ज़िंदगी के अंदर वे इस तरह के अजाब में नहीं था। इसी वजह से गुनाहगार शख्स दुनिया की ज़िंदगी को याद करता रहता है और घर वालों को याद करता रहता है। इसी वजह से इस्लाम में इसाले सवाब करने को कहा गया है, क्योंकि इसाले सवाब करने से जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों की बख्शिश होती है और जो नेकी वाले होते हैं उनके दर्जे बुलंद होते हैं। हर हाल में अपने मरने वाले को याद रखना चाहिए, उनके लिए इसाले सवाब करते रहना चाहिए। और हमें चाहिए कि जब हम तौबा व इस्तग़फ़ार करें तो सिर्फ अपने लिए ही ना करें, बल्कि तमाम अपने रिश्तेदारों और मोमिनों के लिए भी करें, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए कैद खाना और उसके लिए कब्र की ज़िंदगी यानी कि आलमे बरज़ख की ज़िंदगी जन्नत होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र में जन्नत का
बिछोना बिछा दिया जाता है और उसको जन्नती कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है जिससे जन्नत की खुशबू कब्र के अंदर महसूस होती है और नेक बंदा बड़ी ही राहत और सुकून में होता है। इसी वजह से उसको दुनिया की और अपने घर वालों की कोई टेंशन, फिक्र, परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब वो अपनी उस जिंदगी में होता है, उसके अंदर उसको राहत और सुकून होता है और जिसके अंदर हमेशा हमेशा रहना है और वो उसी में खुश होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको किसी किस्म की कोई दुख, परेशानी और तकलीफ नहीं होती, बल्कि उसके लिए राहत ही राहत होती है। और जो गुनहगार बंदे हैं उनको ये दुनिया बहुत याद आती है और वो कब्र के अजाब से बहुत परेशान होते हैं। बहरहाल मेरी बहनों, जो असल चीज़ है वो अमल है। जिस तरह आलिमा इकबाल कहते हैं कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूर ही है न नारी, अमल पर ये सारी चीज़ है। अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा कोई मैसेज नहीं, और अगर इंसान के अमाल अल खराब है तो मौत से बुरा उसके लिए कोई मैसेज नहीं। इसी वजह से अल्लाह ताला कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, तुम अपने रब से गिड़गिड़ाकर और आहिस्ता दोनों ही तरीकों से दुआ किया करो। वो हद से बढ़ने वाले को पसंद नहीं करता। और नमाज जनाजा हवाले से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो किसी मैयत की नमाज जनाजा 40 मोमिन पढ़े तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। दूसरी रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मैयत की नमाज जनाजा 100 मुसलमान पढ़े उसके लिए दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। इमाम इब्ने कय्यिम इरशाद फरमाते हैं, नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ करना, लिहाजा कब्र के पास खड़े होकर मैयत के लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। जिस तरह की हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अन्हु ताला की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते तो फरमाते, बिस्मिल्लाह आला सुन्नती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह ताला के नाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर। और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैयत को दफनाकर फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते, अपने भाई के लिए मगफिरत की दुआ करो, इसलिए कि अब इससे सवाल किए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने के और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमें तमाम मरहूमिन और तमाम मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करने और उनके लिए मगफिरत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।